Hi guys. So let me complete first the audibility now. Okay. So let me just share my screen and we'll just start. So let us start. Okay. So let us begin with okay. Now the very first question is that the which of the following is not a man-made disaster? Uh, if you see, man-made disaster is something we know, of course, we let me just briefly introduce it. So it is nothing but the disaster or what we can say आपदा which were created by human. उसका human का हाथ हो उसमें. Smoking, yes, of course, it's a man-made, ठीक है. And of course, if we just say ना कि smoking is a disaster or not, so there's a lot of questions on that. Is it a disaster? But it is, no? Now, pollution. Of course, it's a man-made disaster. Of course, if we talking about the dam failure, so अगर dam किसी भी any reason by any reason it fails, so there may be a lot of reasons. If we say कि man-made, yes, natural, yes, ठीक है. So if we talking about a man-made dam failure, yes, poor architecture, poor material used, uh, जो भी लापरवाही हुई देखो आर्किटेक्चुरल साइड से या फिर सिविल साइड से जो भी लापरवाही हुई उससे जा सकता है डैम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग इफ यू वांट टू सी कि डैम इफ यू सी मोर वाटर आता है उसमें क्यों आता है ज़्यादा पानी, ज़्यादा बारिश की वजह से, है ना.
if this counts ना, तो ज़्यादा बारिश किसकी वजह से हो रही है? So there are two certain points. Here again it's a man-made and it's natural. ज़्यादा बारिश किसकी वजह से हो रही है, ठीक है? Coming to this draft again man-made. अगर we have to say कि see draft, if we say this is something like कि again consider as a two-way pointer, man-made and why man-made. If let us see the man-made first. डिफॉरेस्टेशन है ना, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लेट अस टेक दैट, डिफॉरेस्टेशन हो रही है बारिश की वजह से कम हो रही है बारिश, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से आप बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हो, ठीक है, एफॉरेस्टेशन हो नहीं रही है, तो उसकी वजह से जो बेसिक जो इनकी पेड़ों की कमी की वजह से रेनफॉल कम हो रहा है उस जो भी एरिया पर्टिकुलर, नॉट वी कैन से सॉलिडली उसकी वजह से आ रहे हैं मैन मेड डिजास्टर, सॉरी मैन मेड, दोनों की वजह से। तो the answer, coming to this, arrange the following disasters in chronological order. So if you see disaster, this would be very known, 2015 I guess. uh, Mumbai flood is the oldest five. So if you know कि मुंबई फ्लड जो है आए हुए हैं, so it would be very easy to answer. See, when I see the paper it was like कि moderate to tough, ठीक है, when I do first time see the paper, ठीक है, moderate to tough, easier to moderate, ठीक है, it's moderate to tough if you just look at the paper, and when you read the question you will get to know easily कि if you know the one you will get the answer, so we'll see it later. So basically the answer is this. So you can see Kashmir flood is the, I guess the last, because 2015 I guess it should be, yes, third arrange, okay, for, yes, and I don't know the lake August, ठीक है, बट आई नो कि मुंबई फ्लड्स 5 में आए थे, तो सब 5 में हो सकता है, देन आई नो लास्ट वन, द सॉरी एक्चुअली हाँ यस कश्मीर फ्लड्स, आई नो द उत्तराखंड वन ना, लेटेस्ट, सॉरी द लेटेस्ट वन. So the first one should be this. The last one, I guess, Uttarakhand is. I have to check this Kashmir floods. Not sure about the Kashmir floods. 2015 में उत्तराखंड में हुआ था, like guess. Sorry, 2000. Kashmir floods was 2014-15, which are the latest. Yes, but if you know से पहले आया हुआ है, so you can answer that directly. No? Moving to next, in which year the fast adoption of manufacturing electric hybrid vehicle fame. So it was launched. The first phase was launched in the 15, and the second phase, I guess, 31 March of 2015 to the 31 March of 2019. 31 March नहीं, जो first phase था इसका, that would be from 15 to 19. So the here is it is not mentioned, but it is कि start हुई थी. The first phase start था तो 2015 में, second होता तो it is 19 of course. Moving toward chairman of Standing Committee of Labour, Textile and Skill Development, which presented its reports on national policy on child labour and assessment on December 2023. Arvind Pangaria, K. Kaushik. Okay, see this one, Mehtab Saab. Why? Because if you have read the news, you will get to know it easily. Now, what percentage of its crude oil consumption India important? 37%. Easily. Which of the following pesticide has largest market share in India? It's not beats the growing market. It's not insecticide. Maybe insecticide the answer. So
are not because herbicide is a growing market right now. Biopesticide is also a growing market right now. If you see the contest, of course, insecticide won. Yes, A is the answer. We'll see it in the. What is the contribution of Gulf Cooperation Council to countries in India to total trade? Quite tough. Gulf Cooperation Council. Gulf Cooperation Councils. So it was about, if you read the Economic Survey of India, so it would be about 10 to 11. So one fifth, 100 by 5. 100 by 6 is 9, okay. 16%, seventh maybe. 100, 100 by 8 is. So if according to this situation अगर इसको लेके चलूँ मैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में it is about 10 to 11 या 10 to 12% approximately, I don't remember right now, but approximately I guess GCC से इतना ही था. So the answer, if I had to calculate, I would mark 1 by 8. 1 by 5th is very very high, 20%. Then it is 17 के across, then it is 16 के across. It is around, if you calculate 1 by 8, it is 12 point something. So largest trading port. So that is very good question. अगर किसी ने इतना ही पढ़ के आंसर दे दिया होगा तो that would be a great disaster for him or her. Okay, this this is the catch here, the volume wise. So it is Kandla, of course. So these are very straightforward questions. If you read this history की जो geography books, एक पोर्ट के साथ मेंशन किया हुआ है वॉल्यूम वाइज, ट्रेड वाइज, इकोनॉमी वाइज, ठीक है. ओके, which of the following is the highest decision making policy of India on monetary fund? Of course, rice ball of India, Andhra Pradesh. Easy. Liquidity trap. So this is not my area, but I'll just try liquidity trap. Liquidity trap. आई गेस लिक्विडिटी ट्रैप होता है कि जिसमें जैसे कि बैंक के इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, जैसे कि फिर से कि बैंक आपको 4%, हाँ तो बैंक के इंटरेस्ट है आपके पास 0.1% आज की डेट फॉर एग्जांपल. तो आप क्या बोलोगे? मैं बैंक जाऊँ, पैसे जमा कराऊँ, पैसे निकलवाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं अपने पास रखूँ. ठीक है. तो बेसिकली क्या है, तो पीपल के पास एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी, मतलब पैसे जो हो रहे हैं, कैश जो हो रहा है वो उनके पास ज़्यादा है, और बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत लो है तो बैंक में जमा नहीं करवा रहे हैं, तो उनके पास कैश बहुत ज़्यादा है पीपल के पास. देखो अगर बैंक में नहीं, ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स है ना. लेट्स ट्राई. There is excessive liquidity in the market leading to inflation. So this may be the answer. Interest rates are too low to stimulate borrowing and spending. Financial institution faces shortage of liquidity or monetary policy. Again, very tough to find because exactly I don't know. Macroeconomics refer to situation. So I would now rather go to this. Finance has central bank has lost control. I don't know. Okay, now if we go about interest rates are too low to stimulate borrowing and so this may be the answer because excessive. Which of the following is not a component of HDI? Okay, human by the UNDP of course. Okay, life expectancy है वहाँ पे. The gross national income, yes. Education to the children, yes. Employment, D. Repo rate. Repo rate is the rate at which RBI gives you. RBI gives you. सॉरी स्टेट बैंक यानी कि जो बैंक्स हैं हमारे वो आरबीआई से, जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसे लेते हैं यानी एज अ लोन. कमर्शियल बैंक बोरोस, बैंक lends to the RBI. नो दैट इज रिवर्स रेपो रेट. आरबीआई तो हो ही नहीं सकता, लैंड्स टू गवर्नमेंट के लिए लेना देना नहीं है कुछ.
सेंट्रल बैंक से भी कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल वो भी। फिस्कल रिप्रेजेंटरी, दिस इज fiscal responsibility and budget management. I don't know the area that is. We'll solve it later. Moving towards next. Hmm. Foreign Exchange Regulation Act. Foreign Exchange Regulation Act 73 again. So see, uh, if I don't know these three, good, okay. नहीं हमें नहीं पता ये आंसर था क्या ये था। दैट्स व्हाई आई से कि इन जो ये क्वेश्चंस होते हैं, इफ यू सीक ठीक ढंग से ना आप देखें, ये जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, और का काम होता है ये। इफ दे आर 100 क्वेश्चंस इजीली 100 मिनट इजी गुड। इफ यू गेट 2 hours it is very very much time. Okay, WTO I don't know but I know these two I guess, so these are directly answered, ठीक है now. Coming to the polity, of course, power of the Supreme Court of India to decide dispute between central and states falls in which category? Okay. Original jurisdiction, yes. Not advisory council में नहीं है, बस the सेंटर और स्टेट के बीच में, नॉट इन द स्टेट टू स्टेट, तो ये ओरिजिनल jurisdiction में आएगा, ठीक है। Coming to next, who was the chairman of first straight up Kaka commission, if you know? Explain too much. Power to increase the number of judges in Supreme Court are vested in, of course, Parliament. So this is a take, so इसका ठीक है ये। This is very very direct questions from the polity. Okay. ट्रू फॉल्स करेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है। नीति आयोग इज अकाउंटेबल, यस इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली द आई, ओके, ईदर पार्लियामेंट इन नो सेशन, यस ट्रू। कोई भी नहीं होना चाहिए, एक सेकंड। अच्छा फिर 1 2 3 होना चाहिए नीचे की सभी को। ओके, वन क्वेश्चन था यार, ये कैसे ट्रू हो सकता है। ईदर ऑफ द हाउस नहीं, दोनों होने चाहिए आई गेस, फिर दोनों हाउस, कोई भी ईदर ऑफ द हाउस नहीं होता फिर, दोनों हाउस, बोथ द हाउसेस, क्योंकि ऑर्डिनेंस तभी इशू हो सकता है। सॉरी, दिस इज करेक्ट। Now, minimum age सुप्रीम कोर्ट की मेंशन नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दिस इज रॉन्ग। If you see the council, because development council है तो मे बी PM should be the head. So यहाँ पे finance minister head, so this would create a disaster. So this is wrong. So the two are remaining, so correct होगा, because this is the highly correct, because इधर लिखा है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए दोनों चाहिए होते हैं, मतलब दोनों नहीं होने चाहिए, तब आपका व्हाट आई कॉल इट यूनियन कैबिनेट जो है वो बोलेगा कि प्रेसिडेंट को वी शुड वांट टू शो इशू द ऑर्डिनेंस, आपको पास कर दीजिए, और वो 6 मंथ तक रहता है। अगर इसको अमेंड भी करना है और हटाना भी है, तो राज्यसभा हैज द पावर्स। ओके, one of the sorry, which one of the following article of the Indian Constitution says that executive powers of the state, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है व्हाट, जो गवर्नमेंट की पावर्स है, ठीक है, द गवर्नर प्लस द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, सॉरी द यूनियन स्टेट, यूनियन स्टेट मिनिस्ट्री जो भी, ओके। Executive powers of the state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union. Impede or prejudice नहीं होना चाहिए exercise of the union, 57 या 58, this should not comes under the what we call ये president के आगे वाले हैं। Maybe the 257,
क्योंकि जब हम 355 की बात करते हैं ना, तो ये वाले जो हैं दैट कम्स अंडर के जो इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स, जैसे कि मे बी इट वुड आई नो मे बी रॉन्ग, बट दिस इज कि अगर कोई एग्रेशन है, मतलब बेसिकली एक्सटर्नल एग्रेशन होता है किसी स्टेट पर, तो उससे बचाना उस स्टेट को। और दिस इज समहाउ द इमरजेंसी वाले हैं 35678, मे बी 7 वुड बी द करेक्ट आंसर। 258 would not, because it should be the 257 of course. Yes, here is the answer. Okay. जॉइंट सिटिंग में कोई बिल आता है, ऑफ कोर्स दोनों से जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेज ही होती है, और किसकी होती है? इट हैज टू पास विद द काइंड ऑफ सिंपल मेजॉरिटी के साथ। यस। पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन, अर्जेंट पब्लिक मैटर सुनना, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से बोथ हैविंग रियल एंड नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव। यस, ट्रू। कलेक्टिव इज जस्ट बेस्ड ऑन द कलेक्टिव। आई गेस द कलेक्टिव वाला चेक करना पड़ेगा एक बार। बेस्ड ऑन सिस्टम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखते हैं चलो। बाई कैमरल तो है ही ऑफ कोर्स, वहाँ पे हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, और दूसरा होता है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है, वहाँ भी हाउस ऑफ द लॉर्ड्स होता है, और एक और होता है। to make the judicial review। Yes, the judicial review is the answer, right? It may be because judiciary वहाँ पे कुछ कर नहीं सकती है मेरे हिसाब से। So let us for now it is D। बाद में देखेंगे इसको, बिकॉज ये तो हो ही नहीं सकता ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि फिर सी द इंडियन पार्लियामेंट, कोई यूनियन मिनिस्टर में कोई फॉर एग्जांपल गडकरी साहब इफ ही बोलते हैं कि ये वाला रोड बनाना चाहिए, कल को वहाँ पे प्रॉब्लम्स, कल को वो रोड की वजह से कुछ होता है कि वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से कुछ हुआ, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन गवर्नमेंट, फुल गवर्नमेंट। उस डिसीजन में जिसका हाथ था, ये जिसका नहीं था, बट जो प्रपोजल था वो तो गडकरी साहब का था, तो उन पे नहीं आएगी, वो कलेक्टिवली आएगी सब पे। सो इट हैज़ टू बी चेक, बट फॉर नाउ इट वुड बी टी। ओके। वेलफेयर स्टेट कहाँ पे मेंशन है? हाँ, enshrined habitats in directive principles mention है। Okay, which of the okay, this is the list of names first schedule। नेम स्टेट चेंज करना हो वहीं पे सब कुछ। Which one of the following objective is not embodied in the preamble of Indian Constitution? Liberty of expression है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है। बिलीफ मतलब अगर आप सोच सकते हो तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इजी समझना। और बचा लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑफ कोर्स, यस। एंड बचा इकोनॉमिक लिबर्टी। Now coming to next, so let us see ना कि basically preamble is nothing but sovereign socialist, उसमें वही लिखा है, ठीक है। तो फॉर नाउ इट इज कि इकोनॉमिक लिबर्टी, लेट अस जस्ट स्पीक, याद नहीं आ रहा, preamble वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolve the constitution, ऐसे कुछ था।
बट उसमें मेंशन है कि सोशल सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो उसमें मतलब लिबर्टी तो है ही, एक्सप्रेशन करने की भी, बिलीव करने की भी, थॉट करने की भी। तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स हैं वहाँ पे। बट जस्टिस से एबिलिटी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। लेट अस टेक वरना है लिबर्टी, बिकॉज लिबर्टी इकोनॉमिक लिबर्टी भी थोड़ी सी इट इज लाइक कि 50-50 लेके चलो, क्वेश्चन में थोड़ा हेरफेर हो सकता है। ये इकोनॉमिक भी मेंशन है मेरे हिसाब से उसमें। जब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, इट इज सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों चीजें लिखी हुई है वहाँ पे। सो लेट अस फॉर नाउ इट इज तीनों तो है ही, तो इसका चेक कर लेंगे एक बार, तो कोई क्वेश्चन भी गड़बड़ हो सकती है इसमें। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, द डिस्क्वालिफिकेशन 102.191। ओके, दिस इज ट्रू आई गेस, one is true. As per the latest provision of defection laws, party has to merge with party at least one third of the legislature of the party area is favored of such merger, one third. So I don't read that all latest defection laws, so I can't be. So one is I guess correct. We'll check it later. So for now this is gone. Okay, Public Account Committee is the first parliamentary committee. Yes, the oldest one. Yes. Related is related to some financial stability. Now again, Public Accounts Committee. Yes. Yeah, your committee, estimates committee, and committee of estimates committee and public of undertaking. What is this? Okay, comma लगा है, estimates committee and committee on public undertaking. Okay, all financial committees of Indian Parliament. This is quite hard. Estimates committee. तो थर्ड वाली तो जो थी वो ये तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए थी, ये भी फाइनेंशियल ले ली थी आई गेस। This creates a hodgepodge. Okay, later for now, let us take this also as financial. So, 1 and 2. Okay, Jharkhand formation. फिर से हरियाणा। हरियाणा 66 में बना था एंड उत्तराखंड इज लेटर, बहुत लेट बना है उससे। हरियाणा के बाद अगर उत्तराखंड हूँ तो टू नहीं आएगा। ये तो 66 में बना था और 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ बेसिकली आउट ऑफ द मध्य प्रदेश। So it is zero, so इसको लिखते हैं जीरो। हरियाणा हमारा 66 में बना था, जीरो जीरो में बना, यानी कि हरियाणा का सबसे पहले होना चाहिए ना। ना टेकिंग दिस एज ऑप्शन, किसको लेके चलते हैं। so, हरियाणा आ गया हमारा, ये उत्तराखंड इज क्वाइट टफ। ओके, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड झारखंड भी 2000। इज क्वाइट टफ, यस, बिकॉज इसी की वजह से इंटरनेट पे एक्चुअली मेंशन भी 2000 2000 2000 भी। That's why I thought it is a quite bit a controversial हो सकता है क्वेश्चन। सो कि तीनों का ईयर इज लाइक अप्रोक्सीमेटली सेम। हरियाणा इज ऑन द फर्स्ट, नो इशू। तो फिर तो उस हिसाब से दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। जिसने बी लगाया वो भी, जिसने डी लगाया वो भी। बिकॉज इफ यू सी, तो अगर हरियाणा इज ऑन द 66, ये भी 2000, ये भी 2000, ये भी 2000, आगे पीछे कर दो। एक ही दिन का भी एग्जैक्टली तो पूछा नहीं है। इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। Okay, sorry, this is little bit. Okay, let me read this for you. Money bill has to be passed by each
house of the parliament separately. And Rajya Sabha also have power. No, Rajya Sabha doesn't have the power. This is, I guess, incorrect. Second point, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले तो गलत है बिकॉज राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकते तो पहले तो गलत है पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस यस दिस इज ट्रू कैन बी कहीं भी आ सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों ही लोअर में भी अपर में हाउस में हाई कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर कर सकता है मे बी स्टेट वाइज नो हाई कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर हाई कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर क्वाइट टफ हाई कोर्ट parliament shall consist of president this is तो completely wrong ना सो कैन हाई देखो अगर हाई कोर्ट की बात आती है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता कोई भी लॉ है तो फॉर द टाइम बेइंग उसको मतलब डिक्लेयर कर सकता है दैट इज ट्रू लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कैन नॉट मतलब डिक्लेयर हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर कोई भी लॉ है उसको मतलब किसी हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन डिक्लेयर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात है वैलिडिटी चेक तो इट कैन डू दैट ना सो दैट इज दिस इज रॉन्ग so parliament shall consist of this is also wrong because parliament is what parliament shall consist of president and two houses. This is again too tough. This is again because of parliament की बात कर रहे हैं you are talking about both राज्यसभा लोकसभा एंड ऑफ कोर्स द नॉमिनल सॉरी इसमें जो आ गया ना आपका नॉमिनल हेड बिकॉज नॉमिनल हेड जो प्रेसिडेंट है वो भी इसी के पार्ट होते हैं मीन्स ये करेक्ट है ना पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ यस तो मतलब दो पूछे होंगे फिर नीचे choose the correct options it is 1 3 2 3 2 and 4 2 4 2 4 this one 2 4 C this is correct let me just remove that let me do it again okay so if I say ठीक पूछा गया मनी बिल वाला तो गलत है बिकॉज इसको अमेंड नहीं किया जा सकता राज्यसभा में ओके नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यस कर सकते हैं किसी भी हाउस में कर सकते हैं थर्ड वन इज हाई कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर हाई कोर्ट डिक्लेयर वैलिडिटी यस वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है हाई कोर्ट में कोई अगर कानून आता है तो उसको वैलिड किया जा सकता है हाई कोर्ट उसको इनवैलिड कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर सकता है Parliament shall consist of president two house and this which I am confused over the only one has to choose but okay now it is correct because दो options हैं तो you have to two and four yes two is correct and four is correct moving next okay, the Lok Sabha seat it is again the blunder okay now let us check that so if we have to see Assam has 14 seats I guess it's not a guess but it is the 14 seats. And if you see Telangana has Assam has 48. No, इसमें से सबसे कम है वो है अपनी okay yes Assam has 14 seats yes true है फिर तो Assam has 14 seats तो Assam has 14 ये D का 2 D का is this one so let us check this question up okay now check एक अपने को
17 याद है बिकॉज 17 याद है तेलंगाना की, बट आई एम नॉट श्योर। 17 की 16 थी तेलंगाना की। फिर चेक ऑन द इंटरनेट, लेट मी कंफर्म दिस, फिर उसके बाद हमारा ठीक हो जाएगा। नहीं, याद किसको रहता है? मतलब इनको बोलते हैं टफ क्वेश्चन, मतलब लॉक सीट सिर्फ स्टेट वाले को याद होती है, वो भी नहीं होती ऑफ कोर्स। ओके 17 ठीक है, तो मतलब यही रहा टी आंसर। तो जल्दी करते हैं थोड़ा। के बुक दी है नीरेशन ऑफ कास्ट, सबको पता है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब। हमारे समाज मूवमेंट सबको पता है, दयानंद सरस्वती साहब सर जो भी हैं। अनटचेबिलिटी बचाओ महात्मा का सती प्रथा आ गया ना, तो फिर मैच करना। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, ठीक है। उनके जो ब्रदर की विडो थी वो मतलब आग में चली गई थी, इसलिए जो मतलब इफ यू हैव रेड दैट, ओके फाइन। ओके मूवमेंट मूवी नेक्स्ट। डी बी आर अम्बेडकर साहब को अगर मैं 2 दे दूं, डी डी को अगर मैं 2 दे देखूं, तो अगर अब मैं इतना ही पता होता ना मुझे, और एवरीवन नोज, हर बार आता है क्वेश्चन रिलेशन ऑफ कास्ट, तो हर किसी ना किसी एग्जाम में। तो लेट अस चेक किया फिर ठीक है कि नहीं। लेट अस चेक आईवी, ए का आईवी है कि नहीं है, सी का 1 है कि नहीं है, ठीक है करेक्ट। वुमेन एम्पावरमेंट, ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग अच्छी करें, एजुकेशन अच्छी हो। डिवोर्स के लिए आई डोंट नो थिंक सो भी होना चाहिए, वो एम्पावरमेंट थोड़ी ना हुई। एम्प्लॉयमेंट अपनी अच्छी हो, बट डिसीजन एजुकेशन ठीक हो। दिस वुड बी द 1 to 4, 1 2 का 4, so this would be the answer. So for the time being, these are the answers. So we'll do the detailed analysis later. So for the time being, we'll see after some time the remaining questions as well. Thank you.